Good evening, everyone. Myself, C. Raj Chawla, welcome you all in this today webinar on key changes in the Income Tax Act 2025 vis-a-vis 1961. As we all know that our new Income Tax Act has been passed and it is going to be implemented very soon. So today our guest faculty, CA Advocate Shikhar Garg will discuss the comparison between the new Income Tax Act with our old Income Tax Act 1961. And today we have our session moderator CA Manish Garg from Mathura. I welcome our faculty Shikhar ji and our moderator Manish Garg. And Great. today our faculty will discuss an insight comparative session on the major informations from Income Tax Act to the new Income Tax Act 1920-25, understand how the new act signifies structure, reduces complexity, and modernize India's tax framework. A section-wise analysis of assessment, business income, TDS, TCS definition, and procedural changes introduced in the Income Tax Act 2025. Practical insight for CAs on how compliances, assessment, and litigation will involve under the new regime. Learn the impact of the new tax architecture on day-to-day practice, documentation, and advisory functions. And the last, a concise, practitioner-oriented presentation designed to help professional transition smoothly to the new act framework. So with this, now I request CA Manish Garg to please introduce our guest faculty and then start the session for today. Over to Manish. Thank you, Raj Chawla sir, for providing me the opportunity to act as a moderator for today's webinar. Good evening, everyone, fellow chartered accountants, tax professionals, and friends from across the country. I am CA Manish Garg, your moderator today's session. First of all, I would like to introduce CA Shikhar Garg ji. Mr. Shikhar Garg qualified as a chartered accountant in May 2017 at the young age of 21. He began his professional journey with Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL, Mumbai, where he worked for 4 years, 2018 to 22, gaining extensive exposure to finance, audit, and corporate governance. During the period, he simultaneously pursued the completed US CPA qualification. In 2022, he joined his family's CA practice and gradually developed a deep interest in taxation, reassessment, litigation, administrative laws, and economic offense laws, which eventually led him to pursue his LLB. His transition into legal practice added a strong litigation dimension to his career. Over the years, he has successfully represented several clients before the ITAT and handled matters involving complex reassessment, disputes, search and seizure, consequences, GST litigations, penalty proceeding in 2025. He expanded his practice before Delhi High Court, especially in the area related to economic offenses, white collar matters, and the interplay the taxation with criminal law. Mr. Garg is also an active speaker and knowledge contributor. He has delivered lecture at ICAI study circles, including sessions on economic offenses, PMLA compliances, reassessment under the Income Tax Act, and litigation strategy for professional. His sessions are widely appreciated for clarity, practically, and real case insights tailored for chartered accountants. With a blend of corporate experience, tax expertise, and litigation practice, he continued to build a strong niche in tax litigation, economic offenses, laws, and high stake appellate advocacy. I introduce to the house CA Shikharji. I welcome to CA Shikhar. The stage is yours. We are all eager to learn from you. CA Shikhar. Thank you all. Respected Raj Chawla ji, organizer. Respected Manish Garg ji, moderator. आप लोगों ने इतने
प्रॉपरली मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि मुझे इसके बाद कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं लगती। और दिस इज़ द थर्ड टाइम where I am speaking on this platform। राज चावला जी के इवेंचुअली जो इन्होंने प्रोग्राम एवरी सैटरडे को शुरू किया है, वो उसकी रीच धीरे धीरे काफ़ी वाइड होती जा रही है। एंड वाइड से ज़्यादा हम एज अ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दूसरे से बहुत सीख रहे हैं। सीए मनीष गर्ग जी ने बोला कि हम आपसे सीखने के लिए उत्सुक है। मेरा इसमें व्यू पॉइंट है सर, मैं आप लोगों से सीखने के लिए कितना उत्सुक हूँ, सब आप दूसरे से एक दूसरे से सीखने के लिए कितना उत्सुक है। ये सेशन जो है, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। रीजन बीइंग ऑलमोस्ट हम दिसंबर 2025 में एंटर हो चुके हैं और सिर्फ 4 महीने बचे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के इनिशिएशन में। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम सबके जहन में इतना घुस चुका है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स होंगे उन्होंने शुरू से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी होगी, और वो इतना जहन में घुस चुका है कि कैसे उससे बाहर आए और कैसे नए एक्ट को हम एक्लेमेटाइज करेंगे। तो इस सेशन में मेरा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि जब अगले 3-4 महीने के बाद आपके पास, सबके पास, टैक्समैन की अपनी अपनी जो भी रिस्पेक्टिव पब्लिशर्स है उनकी आपके पास जब किताब आए, तो उस टाइम पे आप लोगों को उसका एक रीजनेबल आइडिया हो, आप लोगों को पता हो कि अच्छा ये सेक्शन ये डील करता है, ये सेक्शन ये डील करता है, एटलीस्ट जो बेसिक सेक्शंस है उनके बारे में आप लोगों को आइडिया हो, ताकि आपको ये बुक या पूरा एक्ट एलियन ना लगे, ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पूरा ही चेंज हो गया। तो मैं सेशन शुरू करने से पहले एक बार ये अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूं। हाँ, आपको ये विजिबल है सर? मेरी सर पीपीटी विजिबल है? नहीं, अभी नहीं है सर। अच्छा, ओ, अब विजिबल है? हाँ बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी। प्लीज कैरी ऑन। तो मीनिंग देयर बाय की ट्रांजिशन फ्रॉम 1961 टू 2025। मैं इस टॉपिक में आने से पहले थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे इसकी हिस्ट्री डेवलप हुई है एंड कैसे एक्ट जो है ये इवेंचुअली फॉर्म हुआ है। तो किसी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट कब फॉर्मुलेट हुआ है? 1961 क्या पहला एक्ट है? उससे पहले भी एक्ट है, ये सबको पता है। कब फॉर्मुलेट हुआ है इनकम टैक्स एक्ट? अगर किसी को चैट बॉक्स में लिखना है या किसी को आइडिया है इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से बहुत पहले से है, ये सबको पता है। इनकम टैक्स एक्ट इनिशिएट हुआ 24 जुलाई 1860 में। मैं बस 5 मिनट में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री देके शुरू करूंगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट शुरू किया, क्यों किया 1860 में? बिकॉज जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का काफी नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया टैक्स इंपोज किया, इनकम टैक्स एक्ट। तो ये 1860 में इंपोज हुआ और इवेंचुअली उसमें कई अमेंडमेंट्स आए। कई अमेंडमेंट्स कैसे आए?
वो अमेंडमेंट आए कि 1860 से 1886 में गए, फिर और कुछ सालों बाद अमेंडमेंट आए, फिर उसके बाद 1918 में इनकम टैक्स एक्ट डेवलप हुआ, फिर मेजर जो एक्ट आया वो 1922 में आया। 1918 से 1922 का जो एक्ट है वो क्यों आया? वो आया बिकॉज पहले जो इनकम टैक्स लेवी होता था वो डेलीगेटेड पावर होती थी, जो उनकी प्रोविंशियल स्टेट्स है वही इनकम टैक्स कलेक्ट करती थी। 1922 में जब एक्ट फॉर्मुलेट हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने पूरे एक्ट पे कंट्रोल ले लिया। तो काफी बड़ा पॉलिसी चेंज आया फ्रॉम 1918 टू 1922, और इवेंचुअली 1922 से 1961 में जब चेंज आए तो उसके अंदर काफी पॉलिसी चेंज आए। कैसे पॉलिसी चेंज आए? बिकॉज जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था उस एक्ट में काफी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंक्लूड करे गए। जैसे मैं अगर एग्जांपल देके बताऊं तो पहले जो हमारा रीअसेसमेंट है, जो सेक्शन 147 से 153 तक है, वो पहले सेक्शन 34 होता था इनकम टैक्स एक्ट 22 में। उसके अंदर ये होता था कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो 8 साल तक किसी का भी असेसमेंट खोल सकता था। फिर उसमें रीजंस टू बिलीव के सेफगार्ड्स डाले गए, अप्रूवल के सेफगार्ड्स डाले गए। पूरे एक्ट में कई जगह पे प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस के सेफगार्ड डाले गए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो डाले, जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं थे। तो जो नेसेसरी प्रोसीजरल चेंजेस थे, पॉलिसी चेंजेस थे, वो 1961 एक्ट में किए गए। अब 2025 में अगर हम इस एक्ट का सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजनिंग देखे, तो स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजनिंग में कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं है। इसमें इनका पर्पस ये है कि हमें लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन करनी है ताकि वो इजी एंड ल्यूसिड हो एंड लेस कॉम्प्रिहेंसिव हो। तो जो पॉलिसी चेंजेस थे पिछले एक्ट्स में, जब भी ये चेंज हुआ है, उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस करे। 2025 में इन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं करा, कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं करा। छोटे मोटे इधर उधर पॉलिसी चेंजेस है बट कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं करा। वो जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं एक छोटा सा आपको एक इंसिडेंट सा बताऊंगा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट पास थ्रू हुआ। 1961 में जब ये एक्ट आया, ये आया 1 अप्रैल 1962 से, इंप्लीमेंट हुआ ये 1 अप्रैल 1962 से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के सोर्स थे वो दो ही थे, एक है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा है कस्टम एक्ट। ये दो ही ऐसे सोर्सेस थे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती थी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को जनरल सेल्स टैक्स एक्ट से रेवेन्यू मिलती थी। अनफॉर्चुनेटली जो टाइम रहा जब 1961 एक्ट आया, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। रीजन बीइंग जो सबसे मेजर दो सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स थे वो डेवलप हुए 1962 में। सरकार को अपने रेवेन्यू के बारे में आइडिया नहीं है कि उससे कितना आएगा या कितना उसमें से चेंजेस होंगे। रीजन बीइंग जैसे 2017 में जीएसटी आया, इवेंचुअली 2017 में जीएसटी आने में रेवेन्यू कितना ऊपर नीचे रहा, गवर्नमेंट को आइडिया लगाने में काफी टाइम लग गया, उसको स्टेबलाइज करने में काफी टाइम लग गया। ऐसे ही 1962 में जब इनकम टैक्स एक्ट आया, कस्टम एक्ट आया, तो गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू साइड को डिटरमाइन करने के लिए काफी टाइम लगा। एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, 1971 में इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान वॉर हुआ। तो जब 1961 का एक्ट आया उसके बाद कंट्री की जो सिचुएशन थी, फिस्कल पॉलिसीज थी, वो काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजरी। आई होप कि जब 2025 का एक्ट आया है वो अब हमारी कंट्री जो है वो एक स्टेबलाइज सिचुएशन से ही पास होए, अनलाइक जैसे पिछली बार ही हुआ।
अब हम आते हैं 2025 एक्ट के लिए, जिसके लिए हमने मेजर ये करा है, जिसके लिए ये सेशन रखा है। तो 2025 में जो इसका स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू एक्ट है वो ये कहता है कि पिछले 65 सालों में, पिछले 65 ईयर्स में मोर देन 4000 अमेंडमेंट्स एनुअली हो रही है। एनुअली नहीं, टोटल 4000 अमेंडमेंट्स हुई है एनुअली जो अमेंडमेंट्स होती है। अब क्यों 4000 अमेंडमेंट्स हुई है? उसका रीजन ये है बिकॉज दिस इज अ फिस्कल एक्ट। ये एक सिविल एंड क्रिमिनल एक्ट नहीं है। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ मोर और लेस आर स्टेबल, लेकिन जो फिस्कल एक्ट है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की खुद की प्रायोरिटीज क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। एंड इवेंचुअली एवरी ईयर लोड्स एंड लोड्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। अब वो इतनी अमेंडमेंट्स आने के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था पूरे एक्ट का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता चला गया। और उस कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें नया एक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसको इजियर बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे इजी बना ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली। इसकी इंस्पिरेशन मिली कि एक्ट को चेंज करने की, वो मिली यूनाइटेड किंगडम्स एंड ऑस्ट्रेलिया से। जो भी मेजर इकोनॉमी है उन लोगों ने अपने फिस्कल लॉज को चेंजेस करे हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इंडिया भी कर रही है, बट उन्होंने अपने पूरे एक्ट को चेंज किया। यूके ने 1994 से लेके 2010 में अपने पूरे लॉ को चेंज कर दिया। वहां पे यूके में कहते हैं HMRC, हाई मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। वो एक सिंगल एक्ट था, उसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने वहां पे 5 एक्ट बना दिए अलग अलग क्लास ऑफ पर्संस के लिए, जो HMRC होता है, जैसे हमारे यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक्ट को बहुत सिंप्लीफाई किया और उसकी जो वर्डिंग्स है वो अराउंड 50% ले आया, जो इंडिया ने करा है। तो बड़ी मेजर इकोनॉमीज के एफर्ट्स को देखते हुए इंडिया ने वहां से इंस्पिरेशन लिया एंड देन 2025 में उन्होंने एक्ट को चेंज किया। हमारे इंडिया में 2009 एंड 2019 में ऑलरेडी इसको चेंज करने के अटेम्प्ट्स करे, कि पूरा एक्ट चेंज करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अटेम्प्ट्स फेल हो गए। एंड डीटीसी, उस समय पूरा एक्ट का नाम ही डीटीसी करने का कोशिश करी गई, वो डीटीसी नहीं आ पाया। अब ये मोर देन 60,000 आवर्स सीबीडीटीएस के मेंबर्स ने, सीबीडीटी के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगाए एंड जुलाई 2024 में स्टार्ट किया। एंड इवेंचुअली काफी जल्दी इन लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके नया एक्ट को फॉर्मुलेट किया। और जो बेसिक इन्होंने किया वो ये किया कि देखिए इस टेबल में है कि जिस तरीके से चैप्टर्स पहले 47 थे वो 23 हो गए, सेक्शंस जैसे टोटल 819 थे वो 536 हो गए, वर्डिंग्स कितनी रिड्यूस हो गई। एंड जितने प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशंस थे वो सारे के सारे रिमूव करके उनको सब सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क दैट दे हैव डन। अब हम सीखेंगे कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं, क्या मेजर चेंजेस आए हैं जिसके बेसिस पे हमें ये 2025 एक्ट को पढ़ने की जरूरत पड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक कॉपी पेंसिल लीजिए। जिसके पास भी अगर कॉपी पेंसिल है, नहीं है, प्लीज वो ले आइए। और मैं आपको बेसिक सेक्शंस आपको बताऊंगा जो जो चेंजेस हुए हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको बेसिक सेक्शंस की नॉलेज नहीं होगी या बेसिक सेक्शंस नहीं पता होंगे, तब तक वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे हम आगे कंटिन्यू करें। मैं ओल्ड एक्ट के सबको बेसिक सेक्शंस पता है कि क्या क्या है, मैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस आपको याद कराना चाहता हूं कि आपको बेसिक सेक्शंस याद हो जाए, ताकि जब आपके पास 3 महीने बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 आए
तो आपको इजीली आप नेविगेट कर पाओ। तो जैसे सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 है ओल्ड एक्ट का, मैं इसको बोलूंगा ओल्ड एक्ट एंड न्यू एक्ट। 2025 इज न्यू एक्ट, 1961 इज ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट का सेक्शन 10 बन गया सेक्शन 11, जो एग्जम्पशन का सेक्शन था वो बन गया सेक्शन 11 ऑफ द न्यू एक्ट। आप प्लीज इसको अभी से ही नोट करना शुरू कर दीजिए, एंड इवेंचुअली आपको ये बहुत काम आएगा। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिन जिन से आप बात करें, कोशिश कीजिए अब न्यू एक्ट में, न्यू एक्ट के सेक्शंस आप बोलना शुरू कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेक्शन 10 ऑफ द ओल्ड एक्ट कन्वर्ट हुआ है सेक्शन 11 ऑफ द न्यू एक्ट में। सेक्शन 15 ऑफ द ओल्ड एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ द ओल्ड एक्ट है जो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है, वो रहा है सेक्शन 15 ऑफ द न्यू एक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 22 ऑफ द ओल्ड एक्ट, सेक्शन 22 ऑफ द ओल्ड एक्ट है चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो हो गया सेक्शन 20 ऑफ द न्यू एक्ट। एक आप टेबल बना लीजिए न्यू एक्ट एंड ओल्ड एक्ट, जो बेसिक सेक्शंस है वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप आगे चल के बहुत इजीली रेफर कर पाए। जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस है या जिन सेक्शंस में मेजर इंटरलिंकिंग है, वो आपको, जिनमें ज्यादा रेफरेंसेस है, वो आपको पता होने चाहिए। सेक्शन 22 ऑफ द ओल्ड एक्ट जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, वो हो गया सेक्शन 20 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 28 जो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है, वो है सेक्शन 26 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 45 ऑफ द ओल्ड एक्ट जो कि कैपिटल गेन का सेक्शन है, वो हो गया सेक्शन 67 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 56, मैं ये आप लोगों को, राज चावला जी को, मैं इसकी मेजर सेक्शन की नेविगेशन भी दे दूंगा। बाकी मेजर सेक्शन की नेविगेशन आईसीआई ने और आईसीआई की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इनकी मैपिंग अवेलेबल है। सेक्शन 45 ऑफ द ओल्ड एक्ट हो गया सेक्शन 67 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 56 जो कि है अदर सोर्सेज का सेक्शन, अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन, वो हो गया सेक्शन 92 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 80C ऑफ ओल्ड एक्ट हो गया सेक्शन 123। सेक्शन 143, सेक्शन 143 होता है जो कि मेजर असेसमेंट के लिए सेक्शन होते हैं, इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है सेक्शन 143 में, वो हो गया सेक्शन 270। सेक्शन 147 जो रीअसेसमेंट का सेक्शन है, वो हो गया सेक्शन 279। प्लीज आप इससे नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं उनको आगे चल के रेफरेंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सेक्शन 158BA जो कि सर्च का सेक्शन है, वो कन्वर्ट हुआ है सेक्शन 292 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 246 कैपिटल ए, सेक्शन 246 कैपिटल ए अपील का सेक्शन है, सीआईटी अपील्स का सेक्शन है, वो हो गया है सेक्शन 357 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 252 जो कि आईटीएटी का सेक्शन है, आईटीएटी की अपील के लिए सेक्शन है, वो हो गया 361। टीडीएस के सेक्शन होते हैं ओल्ड एक्ट में सेक्शन 193 से लेके 197 तक, जिसमें सारे के सारे टीडीएस के प्रोविजंस है, टीडीएस के रेट्स है, वो सारे एक्ट, वो सारे सेक्शन कंबाइन हो गए सेक्शन 393 से। सेक्शन 206C, सेक्शन 206C जो कि टीसीएस का प्रोविजन है, टीसीएस का सेक्शन है, वो हो गया 394। तो मैंने आपको मेजर मेजर एक्ट्स बताए हैं अभी, ये मेजर मेजर एक्ट्स, मेजर मेजर सेक्शंस बताए हैं, ये मेजर मेजर सेक्शन शुड बी देयर इन योर माइंड। आपको ये मेजर सेक्शंस याद होने चाहिए न्यू एक्ट में कौन से है। अगर आपको ये मेजर सेक्शंस याद होंगे तो आपके लिए न्यू एक्ट पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। मैं राज चावला जी को
इसकी एक टेबल भी दे दूंगा कि जो जो मेजर सेक्शंस है, बाकी सेक्शन मैपिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको डिफिकल्टी कम से कम आए जब नया एक्ट आए। नए एक्ट आते ही आपको डिफिकल्टी पढ़ने में कम से कम हो। अब हम देखेंगे कि मेजर चेंजेस आए कहाँ पर है। मेजर चेंजेस आए कहाँ पर है? एक तो सेक्शन नंबर चेंज हो गए सारे के सारे। मैंने आपको मेजर सेक्शंस बताए जिसके बेसिस पे आप इजीली लिंकिंग या क्रॉस रेफरेंस समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन सबको नोट कर लिया बहुत अच्छा, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नेविगेटर है अवेलेबल। आपको मेजर सेक्शंस रिमेंबर होने चाहिए, तभी आप इजीली उसको लिंक कर पाएंगे। मेजर चेंजेस कहाँ पे आए? मेजर चेंजेस देखिए आए हैं एग्जम्पशन के प्रोविजंस में। एग्जम्पशन जो प्रोविजन है सेक्शन 10 है, वो जो 30,000 वर्ड्स का था वो हो गया है 13,500 वर्ड्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी एग्जम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस की जो प्रोविजंस है वो उनकी वर्डिंग्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। मैंने आपको बताया टोटल 193 से लेके 197 कैपिटल ए तक इतने जो सेक्शंस थे, ये टोटल 43 सेक्शंस है। वो सारे सेक्शन एक में मर्ज हो गए सेक्शन 393 में, न्यू एक्ट में। तो इतने सारे सेक्शंस एक ही एक्ट के अंदर मर्ज हो गए और उनकी वर्डिंग्स बहुत कम हुई है। और सिमिलरली जो सेक्शन 11 से लेके 13D तक 13A तक है, जो एनपीओ के प्रोविजंस है, ट्रस्ट के प्रोविजंस है, उनमें मेजर रिडक्शंस आई है, उनमें मेजर चेंजेस हुए हैं। तो ये जो तीन मेजर जहां पे चेंजेस हुए हैं वो है सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 13A में, एंड टीडीएस के प्रोविजंस में, टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस में। इनमें मेजर चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या है? रिडक्शन इन वर्ड्स हुए, और हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने रिडक्शन इन वर्ड्स कर पाए और हम आगे इनको कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो एक्ट सिंप्लीफाई हुआ है उसकी कुछ कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये सबको पता है कि वर्डिंग्स जो है वो हाफ हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। रिडंडेंट प्रोविजंस जितने थे वो सारे के सारे रिमूव करे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्ट 2021 में, 2022 में बहुत सारे ऑलमोस्ट असेसमेंट के अगर रिगार्डिंग में मैं बात करूं, जो असेसमेंट में डील करते हैं, जो लोग लिटिगेशन में हैं, इतने सारे प्रोवाइजोज ऐड हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड। किसी की टाइम लिमिट 18-19 के लिए बढ़ा दी गई, किसी की रिटर्न फाइलिंग के लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई। ऑलमोस्ट हर प्रोविजंस में एक प्रोवाइजो ऐड करके टाइम लिमिट्स को इंक्रीज करा गया। वो सारे के सारे प्रोवाइजो अब रिडंडेंट हो गए और उनको ओल्ड एक्ट में रहने दिया, न्यू एक्ट से उन सबको हटा दिया। तो से जो फाइनेंस एक्ट, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई थी, उसकी वजह से एक्ट का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, उन सब प्रोवाइजर्स को, उन सब रिडंडेंट प्रोविजंस को रिमूव करा गया। जिन जिन भी प्रोविजंस में एक सनसेट क्लॉज है, जिन भी प्रोविजंस में सनसेट क्लॉज है, उन सबको रिमूव कर दिया गया जो फेज आउट हो गए। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है सेक्शन 10A जो ओल्ड एक्ट का है, जो कि SEZ अंडरटेकिंग्स के लिए है। ये एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर 12-13 तक के लिए था, उन सबको हटा दिया गया। टेबल्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, हमारी अगली स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें टेबल्स का काफी मेजर यूज किया गया है नए एक्ट में, और कैसे कैसे टेबल्स का यूज किया गया है मैं शो करता हूं। और पहले एक्ट में जो बहुत ज्यादा से ज्यादा क्रॉस रेफरेंसिंग दे रखी थी, सेक्शन 36 पढ़ते थे, उसमें सेक्शन 43B के बारे में होता था, सेक्शन 40A के बारे में होता था। तो जितनी जितनी क्रॉस रेफरेंसेस दे रखी थी उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करी गई है। मैंने जब पर्सनली थोड़ा एक्ट को देखा तो देखा कि मेजरली जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें क्रॉस रेफरेंसेस मिनिमाइज करने की कोशिश करी गई है। जो सर्च के सेक्शंस हैं, जो असेसमेंट के सेक्शंस है, उसमें फिर भी क्रॉस रेफरेंसेस काफी है, उसमें रिड्यूस नहीं किया गया। लेकिन जो हेड ऑफ इनकम के सेक्शंस है, जो बेसिक प्रोविजंस है, उनमें क्रॉस रेफरेंसेस काफी मिनिमाइज करी गई। और ये आप सबको पता है, प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन जो है वो सारे के सारे रिमूव करे गए।
अब देखिए क्रॉस रेफरेंस जो नए एक्ट में लिखा है और जो पुराने एक्ट में लिखा है उनमें फर्क है। पहले वाले एक्ट में, ओल्ड एक्ट में क्रॉस रेफरेंस मेंशन होता था ऐसे, जैसे सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133, इस तरीके की लैंग्वेज लिखी होती थी पहले एक्ट में, कि सब क्लॉज लिखा होता था, फिर क्लॉज लिखा होता था, फिर सबसेक्शन लिखा होता था, फिर सेक्शन लिखा होता था। इवेंचुअली उसको अब डायरेक्टली लिख देते हैं 133 1B2। वो जो सब क्लॉजेस क्लॉजेस और ये सारी जिस तरीके से लिखा हुआ था उन सबको रिमूव करके उन्होंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली ऐसे लिखने की कोशिश करी है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो उन्होंने स्केड्यूल्स में डाले हैं, रूल्स में डाले हैं। अच्छा, प्रोसीजरल एस्पेक्ट डाले हैं लेकिन पावर जो है वो डेलीगेट नहीं करी गई है। जब 2017 में जीएसटी एक्ट आया तो हमने देखा कि काफी पावर्स डेलीगेटेड हुई है, प्रॉपर ऑफिसर के पास ही सारी पावर है, चाहे 74 हो रहा हो चाहे 73 हो रहा हो। बस रिफंड में है कि ठीक है 10 लाख से ऊपर है तो फिर सर्टेन और सीनियर ऑफिसर्स को पावर्स दे रखी है, बट जीएसटी एक्ट में मेजरली इन्होंने सारी की सारी एक ही ऑफिसर को पावर दे रखी थी जो प्रॉपर ऑफिसर होता था। बट फॉर्चुनेटली इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इन्होंने इस तरीके के कोई चेंजेस नहीं करे, पावर्स डेलीगेट नहीं करी हुई, जो पावर्स पहले जिस अथॉरिटी के पास थी उसी अथॉरिटी को दे के रखी हुई है, और डाइवर्सिफाइड पावर्स दे रखी है, एक स्पेसिफिक पावर्स नहीं दी हुई। और प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन को उन्होंने सबसेक्शन और क्लॉजेस में ही आगे यूज किया है क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब हम एक टॉपिक करते हैं, एक अपना बेसिक टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है एनपीओ को रिलेटेड में, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। मैं उसको बताता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं। एनपीओ पहले के टाइम पे ओल्ड एक्ट में बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। सेक्शन 2 क्लॉज 15 में लिखा होता था कि चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी है। फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस बने होते थे 10 क्लॉज 23C में, 11 12 12A 12 डबल ए 13 80G के प्रोविजन जो चैप्टर 6A में होते थे वो होते थे। सेक्शन 12 के अंदर, चैप्टर 12 के अंदर प्रोविजंस थे एक्रेडिशन के, कि जब ट्रस्ट खत्म होती है तब क्या होता है, उनके अप्रूवल्स के प्रोविजंस थे। तो जो एक स्कैटर्ड प्रोविजंस थे, जो स्कैटर्ड चैप्टर्स अक्रॉस थे, उन सबको, उन सारे प्रोविजंस को उन्होंने अब एक सिंगल चैप्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। और जो मेजर चेंज आया है वो ये आया है कि पहले जैसे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट थी, जैसे कि हम बोलते थे ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स है, उन सबको उन्होंने रिमूव करके एक सिंगल टर्म बना दिया, रजिस्टर्ड एनपीओ, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे लिए जैसे लिटिगेशन में हम रेगुलरली यूज करते हैं कि ये चैरिटेबल एक्टिविटी है फॉर ट्रस्ट है या ये यूनिवर्सिटी के लिए है, वो सबको सारी उन्होंने जितने भी क्लॉजेस थे, अलग अलग बाइफरकेशंस उन्होंने बना रखे थे, वो सब कुछ एक ही में कर दिया है, रजिस्टर्ड एनपीओ। मिनिमम क्रॉस रेफरेंसेस करी है, और जितनी एक्सप्लेनेशन इन प्रोवाइजोस, जो सेक्शन 11 इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था जिसमें 13 एक्सप्लेनेशन 16 प्रोवाइजो है, वो रिलेटिवली उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया, और सारे के सारे प्रोविजंस अब चैप्टर 16B के अंदर आ गए हैं। मैं अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं आपको शो करूं तो हाँ, तो इसके अंदर आता है सेक्शन 332। सेक्शन 332 हम देखते हैं जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड होता है।
ये देखिए, ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये है सेक्शन 332 जो कि एप्लीकेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट है। सारे के सारे सेक्शंस जो है, सारे के सारे सेक्शंस, रजिस्ट्रेशन हो गया या एक्रेडिशन हो गया है, अप्रूवल हो गया है, वो सारे के सारे सेक्शंस अब एक साथ कर दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको पब्लिक अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेनी है। और इसमें भी टेबुलर फॉर्म में लेके आए हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है और उनकी क्या टाइम लिमिट्स है और क्या उनकी वैलिडिटी रहेगी। तो जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर था, जो यही चीज कंटेक्स्ट में लिखी गई थी, वो इन्होंने टेबुलर फॉर्म में देख दिया है। ये मैं आपको एक्लेमेटाइज कर रहा हूं, जो आपको अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है आपको ये पढ़ना है। आप अभी देखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको उतना ही इजी होगा। इस तरीके से टेबल फॉर्म में इन्होंने बनाया कि ये एक स्पेसिफिक केस दिया, ये टाइम लिमिट दिया, ये ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट दिया और उसकी वैलिडिटी दी है। ऐसे इन्होंने टेबुलर मैनर में आगे सेक्शंस दिए हैं। इनकम ऑफ रजिस्टर्ड एनपीओ 356 के अंदर 356 के अंदर थ्री 55 के अंदर अप्रूवल का 354 सेक्शन है। किस तरीके से अप्रूवल है, इनको टेबुलर फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, जितने भी चैप्टर्स फॉर्म हुए हैं, जितने भी इसमें इनकम टैक्स नए बिल में जो चैप्टर्स फॉर्म हुए, नया एक्ट आ गया है, उनमें इन्होंने क्या किया है कि चैप्टर स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस दी है। जो पहले सेक्शन 2 की डेफिनेशन होती थी वो अभी भी है, सेक्शन 2 में अभी भी डेफिनेशंस है, बट इन्होंने कोशिश ये करी है कि हम वर्ड्स को शॉर्ट करें। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देके बताऊं तो रीअसेसमेंट में, पुराने एक्ट में 1961 में ये लिखा होता था रीअसेसमेंट, असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। ये जो वर्डिंग सारी लिखी होती थी, अब उसको सिर्फ रीअसेसमेंट कर दिया और उस चैप्टर के बाद एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर इंटरप्रिटेशंस होती थी, और उस इंटरप्रिटेशन में असेसमेंट वर्डिंग्स लिखी, जैसे इस चैप्टर में है उसमें वर्डिंग लिखी यहाँ पे असेसमेंट, और उसका मीनिंग लिख दिया पूरा कि असेसमेंट मींस असेसमेंट, रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। तो जो पहले अगर कोई वो मेजर टर्मिनोलॉजीज यूज करते थे, उनको उन्होंने शॉर्ट करके उस वाले चैप्टर के साथ वो इंटरप्रिटेशन इंक्लूड करने की कोशिश करिए ताकि ओवरऑल वर्ड्स जो है वो शॉर्ट हो जाए। पहले हमें चैप्टर स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन या चैप्टर स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं होती थी, बट अब पूरे एक्ट में 2025 में चैप्टर स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशंस आपको हर चैप्टर के साथ दिखेगी। तो एनपीओ के प्रोविजन सारे के सारे एक सिंगल जगह पे डाले, जिसमें मेजरली जो स्कैटर्ड प्रोविजंस थे उनको सिंगल एक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई। अब हम आते हैं सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ द न्यू एक्ट में। सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, सेक्शन 3 है जो कि पहले प्रीवियस इनकम का, प्रीवियस ईयर का एंड असेसमेंट ईयर का, मेजरली प्रीवियस ईयर के बारे में डिफाइन करता था। तो यह आप सबको पता है कि जो सेक्शन 2 है उसमें इतने सारे, पहले 48 क्लॉजेस होते थे और उसके अंदर 48 क्लॉजेस के अंदर भी ऐसे होता था कि 2 क्लॉज 48 कैपिटल ए, 2 क्लॉज 48 कैपिटल बी। वो सारे के सारे क्लॉजेस को जो ए बी सी होते थे, जो अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, अब उनको एक साथ उन्होंने डाल दिया, जो कि 112 क्लॉजेस है। कोई भी वर्डिंग से मीनिंग में चेंजेस नहीं करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट जहां पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है स्पेसिफिक वर्डिंग्स पे, उन वर्डिंग्स की लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करी गई है। इसमें रीजंस एंड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमें इनका कोई भी वर्डिंग्स का मीनिंग हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें फाइनलिटी नहीं रिमूव करनी है,
हमें उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना है और हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमल मॉडिफिकेशन करी है सो दैट लैंग्वेज वो इजी होए। तो सेक्शन 2 में कोई भी नया क्लॉज ऐड नहीं हुआ है, जितने पहले क्लॉज थे उतने 112 क्लॉजेस अब आ गए हैं। एंड सिमिलरली जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है वो अब आपको पता है सबको कि वो अब डन अवे हो गया है टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट में। तो पहले जो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, ये एक मेजर पॉलिसी चेंज कह सकते हैं। मेजर पॉलिसी चेंज भी नहीं है, बट हाँ, इससे इस कॉन्सेप्ट से पूरे एक्ट में इंपैक्ट आया है कि टैक्स ईयर का चेंज करा। अब ये क्यों चेंज किया? ये इस वजह से चेंज किया क्योंकि 1988 असेसमेंट ईयर 1988 से पहले इनकम टैक्स एक्ट लोगों को ऑप्शन देता था कि आप अपने हिसाब से असेसमेंट ईयर या अपने हिसाब से ईयर डिसाइड कर लीजिए। कई लोग होते थे जो कैलेंडर ईयर यूज करते थे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। कई लोग होते हैं जो दिवाली टू दिवाली अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं। कई लोग होते हैं जो क्रिसमस टू क्रिसमस अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं। तो 88 से पहले आपका जो प्रीवियस ईयर है दैट कैन बी मोर देन 12 मंथ्स और इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। कोई ईयर ऐसा हो सकता था जो कि 12 मंथ से ज्यादा हो सकता है, जो दिवाली टू दिवाली मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स, और कोई ईयर ऐसा हो सकता था जो कि लेस देन 12 मंथ्स हो। 1988 के अमेंडमेंट के बाद प्रीवियस ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए हो गया फिक्स 12 मंथ्स, दैट इज इट। तो जब ये फिक्स हो गया उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट लाने की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। तो इस वजह से अब हम टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट में चले गए हैं। आज की डेट में या पहले भी 1988 से पहले भी हर असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स ही होगा। हर सॉरी टैक्स ईयर, मेरे को भी टैक्स ईयर से अभी आदत नहीं पड़ी है, मैं भी अभी असेसमेंट ईयर ही बोल रहा हूं। हर टैक्स ईयर 12 मंथ्स ही होगा। अगर बिजनेस अनलेस और अनटिल बिजनेस सेटअप किया है उस साल में तो ही वो लेस देन फर्स्ट ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, अदरवाइज एवरी टैक्स ईयर शुड बी 12 मंथ्स। इसका इंपैक्ट कहां आया? काफी जगह पे इंपैक्ट आया। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो से सेक्शन 149 ऑफ द ओल्ड एक्ट जो है, जो टाइम लिमिट्स कहते हैं रीअसेसमेंट के लिए, वो बोलता है 3 साल एंड 5 साल। तो नया एक्ट जो है, जो सेक्शन 284 ऑफ द न्यू एक्ट है, वो बोलता है 4 साल और 6 साल। वो बोलता है 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर एंड 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। वो बोलता था 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इफेक्टिवली बात एक ही है। तो जितनी भी टाइम लिमिट्स थी वो रिलेटिवली चेंज हुई है, नॉट बिकॉज टाइम लिमिट्स में कोई भी चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस कोई नहीं आए हैं, बट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड टैक्स ईयर टाइम लिमिट्स आपको लगेगा कि डिफरेंट हो गई है। तो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 का जो है मेजर इंपैक्ट आया है पूरे एक्ट में। पूरे 536 एक्ट में 536 सेक्शंस में सेक्शन 3 का से मेजर इंपैक्ट आया है, बट पॉलिसी डिसीजन में कोई चेंजेस नहीं आया। अब मैं आ जाता हूं डायरेक्टली जो सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 जो एग्जाम्पशन का सेक्शन है उसके अंदर 140 क्लॉज से ओल्ड एक्ट में। सेक्शन 10 क्लॉज 23C उसके अंदर 15 सब क्लॉजेस थे और 24 प्रोवाइजोस थे। इतना डिफिकल्ट हो गया था कि बड़े बड़े लिटिगेटर्स का वो पढ़ने का मन नहीं करता था। इनफैक्ट जो काफी सीनियर एडवोकेट्स है वो तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उनको पता लगता है कि हम 15 या 16 प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 23C का। तो इतना डिफिकल्टी हो गई थी विद रिगार्ड टू ट्रस्ट या एग्जाम्पशन से रिलेटेड में, तो उसमें मेजर चेंजेस करे गए और टेबुलर फॉर्मेट में
अब सेक्शन 10 आया, सेक्शन 10 मैंने लिखवाया था, वो हो गया सेक्शन 11 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 10 जो है वो हो गया सेक्शन 11 ऑफ द न्यू एक्ट। मैं अब आपको एक बार ही दिखाता हूं कि सेक्शन 11 कैसा है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, जब नई किताब आए तो आप इजीली उसे रीड कर पाइए। सेक्शन 11 जो है वो इतना छोटा सा बन गया है, बस इतना सा, खत्म। और उन्होंने सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज शेड्यूल में डाल दी है। मेजर जो चीजें हैं वो हो गई है शेड्यूल वाइज, शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 5 शेड्यूल इन्होंने डेवलप करे। एंड उन 5 शेड्यूल में टेबुलर फॉर्मेट में बता रखा है कि कब आपको उस रिलेटेड इनकम से एग्जम्पशन मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो शेड्यूल उन्होंने डेवलप करे हुए हैं। देखिए, ये ब्रीफिंग दे रखी है उन शेड्यूल्स की। सबसे पहला है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में टोटल 16 एंट्रीज है। जो टोटल 140 उसमें क्लॉजेस थे सेक्शन 10 में, उन्होंने 16 एंट्रीज दे रखी है। और वो सारी की सारी जो एग्जम्पशन है वो इनकम स्पेसिफिक है 16 शेड्यूल 2 में। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड एग्जम्पशंस दे रखी है। जो शेड्यूल 3 है, हम देखते हैं शेड्यूल 2 में और कौन कौन सी इन्होंने दे रखी है। ये शेड्यूल 2 है। इसमें इन्होंने बोल रखा है शेड्यूल 2 के इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ये इनकम स्पेसिफिक इन्होंने शेड्यूल 2 डेवलप किया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम कोई कंडीशन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसके रिगार्डिंग में सर्टेन कंडीशंस इन्होंने दे रखी है कि प्रीमियम इतना होना चाहिए। कोई चेंजेस नहीं आया है, बट कितना इजी एंड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दे रखा है। डिफरेंट डिफरेंट, कोई प्रोविडेंट फंड से अगर रिसीव हुआ है तो वो एग्जम्प्ट है। तो ये सबसे पहले जो शेड्यूल नंबर 2 है वो बात करता है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है। अच्छा, वो जो इनकम एग्जम्प्ट है उनमें हम देख सकते हैं कि नीचे नोट दे रखा है कि सीरियल नंबर 2 के लिए अगर उनको कोई कंडीशन और बतानी है या उसका मीनिंग बताना है तो उन्होंने नीचे नोट्स दे रखे हैं। दिस इज अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, यू शुड बी एक्लेमेटाइज टू दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपको दिखाने का पर्पस ही ये है कि आगे चल के आपको बुक डिफरेंट ना लगे, एक्ट डिफरेंट ना लगे। जो 3 है, शेड्यूल 3 है, वो सारी की सारी बताता है एलिजिबल पर्सन्स में। एलिजिबल पर्सन्स में इसमें कौन कौन से दे रखे HUF या पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये पार्टनर्स ऑन द फॉर्म्स। तो HUF से अब इसमें क्या है, इनकम दे रखी है, एलिजिबल पर्सन के बारे में बता रखा है, कंडीशंस दे रखी है। सेकंड शेड्यूल में सिर्फ इनकम दे रखी थी एंड कंडीशंस दे रखी थी, उसमें एलिजिबल पर्सन नहीं था। इनकी हेडिंग दे रखी है कि इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द एलिजिबल पर्सन्स। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज शेड्यूल्स बना रखे हैं। सेक्शन 10 ऑफ द ओल्ड एक्ट में कोई कैटेगरी नहीं थी, ए से लेके 1 से लेके 140 तक के क्लॉजेस दे रखे थे। अब इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में अलग अलग शेड्यूल्स बनाए हैं कैटेगरी वाइज, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स से डाली है ताकि इजी विजिबिलिटी हो। शेड्यूल 4 सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये शेड्यूल 4, income not to be included in total income of eligible non-resident foreign company and other such persons। इसमें मेजरली जितने भी एलिजिबल पर्सन्स होंगे वो सारे के सारे रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होंगे। तो शेड्यूल 4 इन्होंने दिखाया है फॉर एलिजिबल पर्सन्स, एलिजिबल पर्सन हु आर नॉन रेजिडेंट।
ऐसे ही शेड्यूल 5 दिखा रहा है बिजनेस ट्रस्ट के लिए, शेड्यूल 6 दिखाया है आईएफएससी यूनिट्स के लिए, और शेड्यूल 7 दिखाया पर्सन एग्जाम फ्रॉम टैक्स के लिए, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो इन्होंने अब कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स बना रखे हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के बाद शेड्यूल आ जाते हैं सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आता है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा हेड है, ऐसे हेड ऑफ इनकम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पूरे एक्ट में अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज मॉडिफिकेशन करी है, जिसमें पॉलिसी चेंजेस कोई नहीं है बट लैंग्वेज मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा करा है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी में, जिसमें सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन एंड सबसे ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश करी है पूरे चैप्टर में। रीजन बीइंग, गवर्नमेंट ये चाहती है, लेजिस्लेचर का ये, एग्जीक्यूटिव का ये इंटेंट रहा इस पूरे एक्सरसाइज में कि जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, उसको टैक्स प्रोफेशनल से बात करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही चाहे तो वो ट्राई करके एक्ट समझने की कोशिश करे। मैंने जो देखा सबसे ज्यादा चेंजेस लैंग्वेज में वो आए हैं सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी में। आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस होते हैं, जो लिटिगेशन रिलेटेड सेक्शंस होते हैं, जो असेसमेंट रिलेटेड सेक्शंस होते हैं, उनकी लैंग्वेज को ज्यादा टिंकर नहीं करा है, बट सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी में सारे के सारे सेक्शंस में मेजर मॉडिफिकेशंस करी है। और जो स्कैटर्ड प्रोविजंस है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 10 क्लॉज 13A है एचआरए का, या लीव एनकैशमेंट के, ग्रेचुटी के, ये सारे के सारे सेक्शंस जो है वो उन्होंने एक सिंगल प्लेस में प्रोमुलगेट करे हैं। सारे सेक्शंस की सैलरी से रिलेटेड सेक्शंस है, उनको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में नहीं जाना पड़े, वो एक ही चैप्टर में से उन्हें मिनिमम क्रॉस रेफरेंस करने की कोशिश करी गई है। तो अगर सबसे ज्यादा पूरे एक्ट में 2025 में जिसमें अगर लैंग्वेज मॉडिफिकेशन हुआ है वो इन दो हेड में हुआ है, बिकॉज दिस इज द हेड विच इज मोस्टली यूज बाय मोस्ट ऑफ द एसएससीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब हम देखते हैं पीजीबीपी में क्या चेंजेस करे गए हैं। पीजीबीपी में रिलेटिवली चेंजेस काफी हुए हैं। क्या चेंजेस हुए? सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक थे, जो अब हो गए सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 65 तक। पहले टोटल 65 सेक्शंस थे ओल्ड एक्ट में, वो हो गए 41 सेक्शंस। सिर्फ सेक्शंस ही रिड्यूस नहीं करे गए हैं, कोशिश ये किया गया है कि इनमें एक लॉजिकल लिंक बनाने की कोशिश करी जाए, बार बार क्रॉस रेफरेंस देने की जरूरत नहीं हो, जो प्रोविजन सिमिलर है उनको ग्रुप टुगेदर सिमिलर रखने की कोशिश करी गई है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल नए एक्ट में सेक्शन 29 आया है, डिडक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर। ये ओल्ड एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है, सेक्शन 29 के कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है, वो स्कैटर्ड था। सेक्शन 3614, सेक्शन 3615, सेक्शन 3615A, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 9 ग्रेचुटी से रिलेटेड, या जो डिसअलाउंसेस थे, या सेक्शन 43B। ये जो मेजर सेक्शंस थे विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर, वो सारे के सारे सेक्शन 29 में उन्होंने डाल दिए। अब एक ही जगह पे उन्होंने सारे सेक्शंस को कोहेरेंस करने की कोशिश करी है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टैक्स पेयर, टैक्स प्रोफेशनल्स को जाने की जरूरत ना पड़े। सिमिलरली बहुत सारी और ऐसी ऐसी चीजें करी है, जैसे कि जो भी क्लॉजेस रिडंडेंट हो गए थे वो ऑब्वियसली उन्होंने रिमूव कर दिए। इन्वेस्ट सेक्शन 32AB, सेक्शन 32AC, सेक्शन 35AB, ये सारे ऐसे सेक्शंस है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी है, ये इन्वेस्टमेंट इन अदर स्पेसिफाइड फंड्स है, जो कि अब रिडंडेंट हो चुके थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया।
इनमें सिर्फ सनसेट क्लॉज ही नहीं था, वो फेड आउट भी हो गए थे। फॉर एग्जांपल ऐसा था कि अगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सनसेट क्लॉज एंड फेड आउट। सनसेट क्लॉज मींस कि आप इस टाइम के बाद इस सेक्शन को नहीं कर सकते, लेकिन फेड आउट मींस कि अगर आपने इस सेक्शन से ऑप्ट कर लिया है, आपने पहले ऑप्ट कर चुके हो, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी आगे तक रहेगी। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 तक ही, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप 80 IAC जो कि स्टार्टअप है, आप सिर्फ 25-26 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसने 25-26 तक अप्लाई कर दिया वो आगे 10 साल तक कंटिन्यू रहेगा। मींस उसका इफेक्ट जो है वो असेसमेंट ईयर 35-36 तक कंटिन्यू रहेगा। तो सनसेट क्लॉज 25-26 तक था, लेकिन फेज आउट जो है वो 35-36 तक है। तो जो ऐसे प्रोविजन थे जो कि सनसेट क्लॉज भी जा चुका था, फेज आउट भी हो चुके हैं, उन सबको रिमूव कर दिया। और जो ऐसे प्रोविजंस है जो कि काफी डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल WDV है, जो पहले सेक्शन 43 क्लॉज 6 में होता था। WDV की डेफिनेशन वो कितनी डिफिकल्ट होती थी। हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता है WDV क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसका एसेंस क्या है। तो WDV को उन्होंने एक फॉर्मूले देके समझाने की कोशिश करी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में। जो पहले सेक्शन 43 क्लॉज 6 में डेफिनेशन थी वो कन्वर्ट हुई सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में, और हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ। देखते WDV की जो डेफिनेशन है, ये देखिए, पहले कितनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन थी WDV की, अब उन्होंने लिख दिया है कि ये टेबुलर फॉर्मेट बनाया और इसमें लिख दिया है कि WDV आपको कैसे कैलकुलेट करना है इस तरीके से। इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया कि आप ऐसे करके आप अपना WDV ब्लॉक में अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसी को ही अगर वो लैंग्वेज फॉर्म में जो पुराने एक्ट में लिखा हुआ था वो वे टू डिफिकल्ट था। जिसको WDV की डेफिनेशन पढ़ के जिसको WDV वैसे भी पता, वो डेफिनेशन पढ़ के कंफ्यूज हो जाता था ये क्या है। तो WDV को इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में या फॉर्मूले बेस्ड प्रिंसिपल पे इन्होंने प्रोमुलगेट किया। सेक्शन 33AB एंड सेक्शन 33ABA 95% लोगों को पता भी नहीं होगा ये होते क्या है, मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि ये इतनी स्मॉल क्लास ऑफ पर्संस के लिए एप्लीकेबल है, आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 33AB पुराने एक्ट में ये कहता है कि टी डेवलपमेंट, अगर कोई कंपनी है वो टी डेवलपमेंट या रबड़ या कॉफी डेवलपमेंट के उनके अपने फंड्स है, उनमें अगर पैसे डालेंगी तो उनको डिडक्शन मिलेगी 40%। बहुत ही कम क्लास ऑफ पर्संस ऐसे है, बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होंगे जिनके इस कैटेगरी के क्लाइंट्स होंगे, आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। या फॉर एग्जांपल सेक्शन 33ABA जो कि कहता है साइट रिस्टोरेशन फंड है। अगर कोई कंपनी है जिसने MOPNG के साथ एग्रीमेंट करके वो ऑयल ड्रिलिंग कर रही है इंडिया में, तो उन वाले कंपनी के लिए अगर वो साइट रिस्टोरेशन फंड में डाले तो उनको 20% की डिडक्शन अलाउड होती है। बहुत ही कम ऐसे क्लास ऑफ पर्सन है, बिकॉज ये इतने कम क्लास ऑफ पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज वाई उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया सेक्शन 48 एंड 49 में, और इसमें डिफरेंट स्केड्यूल डाल दिए। पहले जो सेक्शन 33AB एंड सेक्शन 33ABA था, ये काफी बड़े बड़े सेक्शंस थे। रीजन बीइंग कि इनकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी इन्होंने बता रखी थी कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे 20% कैलकुलेट करना है, कैसे 40% कैलकुलेट करना है, ये क्या क्या कंडीशंस है। अब उन्होंने वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स थे, उनको पता है कि ये बहुत ही कम क्लास ऑफ पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, तो उन्होंने वो स्केड्यूल में डाल दिए। स्केड्यूल 9 एंड 10 में उनको डाल दिया। सेक्शन अभी भी है, सोर्स जो है, सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर अभी भी वही है, बट लिमिटेड सेक्शंस में उनको डाल दिया। ऐसे ही बैड डेप्ट है
जो कि पहले सेक्शन 3617 में या 36(2) के अंदर होता था, उसका एक सिंगल सेक्शन बना दिया, एक सिंगल सेक्शन उसको डेवलप किया, जिसका नाम है सेक्शन 31। और बैड डेब्ट की देखिए किस तरीके से है। आपको याद होगा कि कैसे पहले शेड्यूल बैंक में कितना परसेंट होता था, रूरल बैंक में कितना परसेंटेज होता था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रिएट करने के लिए, और ये अब उसको कैसे टेबल फॉर्मेट में इन्होंने डेवलप कर दिया। ये मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसको देखिए, ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो नए एक्ट को खोल के देखने का। अगर मैं बता रहा हूं और आप इसको प्रॉपरली नहीं सुन पाएंगे, तो फिर आपको नए एक्ट को खोल के देखने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। मैंने इस एक्ट को काफी बारीक खोल के देखा, और फिर एक छोटी सी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं बाकी फेलो प्रोफेशनल्स को बता सकूं कि हम इसको ऐसे खोल के देख सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको घर पे जाके खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी आपको नया एक्ट नहीं पढ़ा सकता। मैं बस सिंपल, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये ऐसे एक्ट है, ताकि आपको ये बिल्कुल एलियन ना लगे। तो सेक्शन 31 बैड डेब्ट का जो है, उसमें कैसे टेबुलर फॉर्मेट में इन्होंने बता रखा है, जो कि पहले वर्डिंग्स के बेसिस पे होता था। पॉलिसी कोई चेंजेस नहीं है। सेक्शन 32, सेक्शन 32 में जो डिपार्टमेंट के एफएक्यूज आए हैं, उसमें लिखा है कि इतना कॉम्प्लेक्स सेक्शन हो गया था सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का। 63 ईयर्स में इसमें 6 क्लॉजेज हो गए थे, 9 प्रोवाइजो हो गए थे, 6 एक्सप्लेनेशंस हो गए थे। और इसमें जो नया सेक्शन है सेक्शन 33, जो नए एक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 32 का सेक्शन 33, उनकी वर्डिंग्स 40% रिड्यूस हो गई है। मेजरली वर्डिंग्स उसमें रिडक्शन आया है। मुझे जो इसमें अच्छी चीज लगी है कि जितनी पावर्स या जितनी डेलीगेटिंग अथॉरिटी पहले थी, आज की डेट में भी उतनी ही है। इन्होंने स्केड्यूल में डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि स्केड्यूल में डालने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चेंज कर देगी। स्केड्यूल में डालने का मतलब यही है कि वो पार्लियामेंट के थ्रू ही चेंज होके आएगा। तो हमें स्केड्यूल में डालने से हमें ये नहीं समझना है कि अब जैसे जीएसटी में ऑलमोस्ट हर चौथे दिन में जो है एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर डेलीगेटेड पावर कर रखी है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, वो जब आते हैं पॉलिसी चेंज कर देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो उसके बेसिक एसेंस है, उसको वही सेम करके चले है वो। मेरे को इनिशियली एक बारी को ये कंफ्यूजन आई कि क्या स्केड्यूल में डालने का मतलब ये कर दिया इन्होंने कि अब जीएसटी की तरह इसमें भी हर समय सर्कुलर आते रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च जो सेक्शन 35 होता था, वो सेक्शन 45 में कन्वर्ट हुआ है, और उसमें काफी चेंजेस आए हैं, काफी बेटर उसकी लैंग्वेज में चेंजेस करे गए हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव टैक्सेशंस मेजरली जो पीजीपीपी में करते हैं, वो आईटीआर 4 भरते हैं, वो प्रिवेंटिव टैक्सेशंस के बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। प्रिवेंटिव टैक्सेशंस पहले दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक होता है प्रिवेंटिव टैक्सेशन फॉर रेजिडेंट, एक होता है प्रिवेंटिव टैक्सेशन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट। हम में से 95-99% चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिवेंटिव टैक्सेशन फॉर रेजिडेंट ही यूज करते हैं, जो कि 44AB, 44AD, 44AE एंड 44ADA, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में होता है। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो 3 सेक्शन थे, उनको एक में कंबाइन कर दिया, दैट इज सेक्शन 58 ऑफ द न्यू एक्ट। जो 3 पुराने एक्ट में सेक्शन से 44AD, 44ADA, 44AE, उनको उन्होंने कंबाइन कर दिया 58 में। 58 सेक्शन में इन्होंने कंबाइन कर दिया है। ये कैसे ये सेक्शन 58 है? स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग ऑफ कैपिटल गेन ऑफ profits and gain of business and profession on presumptive basis in case of certain resident। और कैसे इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में कि स्पेसिफिक एसएससी ये है, स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन ये है, एसएससी ये है, टर्नओवर ये है, और मैनर कैसे कंप्यूट करना है।
काफी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इन्होंने दे दिया है। जो 44 AE था कि ट्रक्स के लिए, उनकी उन्होंने लैंग्वेज इसी में ही सीरियल नंबर A एंड सीरियल नंबर 2। जो लोग लिटिगेशन में है उनको आगे चल के कोर्ट्स में या हमें प्रोफेशनली भी बात करते हुए कोर्ट्स में या अपने प्रोफेशनल कोलीग में, प्रोफेशनल सर्कल में बात करते हुए सेक्शन 58 बोलना है। और उसके बाद अगर हमें ट्रक के लिए बात करनी है तो जो हम पहले 44 AE डिफरेंट सेक्शन होता था, अब हमें ये बोलना पड़ेगा सीरियल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 सीरियल नंबर 2 ये बोलना पड़ेगा। या सीरियल नंबर 3, जो ADA होता था वो अब सीरियल नंबर 3 हो गया है। सिमिलरली जो नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन होते थे, नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन जो कि लिमिटेड यूज होता था, सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBB, सेक्शन 44BBA, ये सेक्शन कन्वर्ट हो गए हैं सेक्शन 61 में। सेक्शन 61 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 61 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया है कि जो शिप बिल्डर्स है, ऑपरेशन ऑफ शिप्स है, उनकी किस तरीके से कैलकुलेशन होगी नॉन रेजिडेंट की। जो कि ऑपरेशन ऑफ शिप क्रूज है नॉन रेजिडेंट, उनकी कैसे कैलकुलेशन होगी। एयरक्राफ्ट के लिए भी इसमें है, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी। तो जो पहले 3 सेक्शन थे 44BB, 44BBB, 44BBA, उनको एक सिंगल सेक्शन में मर्ज कर दिया गया है। मेजरली PGPP में जो चेंजेस आए हैं वो यही आए हैं कि सबसे पहले तो सेक्शन रिड्यूस करे गए, 65 सेक्शन से 41 सेक्शंस कर दिए गए, और फ्लो जो है उनको सिंगल करके मर्ज करने की कोशिश करी है, लॉजिकल लिंक बनाने की कोशिश करी गई है। नए नए कुछ सेक्शंस आए हैं जो मैंने आपको बताया। सेक्शन 29 मैंने आपको बताया जो कि आया एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड में। डेप्रिसिएशन के सेक्शन में बहुत चेंजेस करे गए हैं, उसमें भी वैसे चार्ट बेसिस में डेवलप किया गया है। और जब ये नया एक्ट आया तो एक कंफ्यूजन मार्केट में आई, वो ये आई कि सेक्शन 37 जो ओल्ड एक्ट का था, जो कि जनरल एक्सपेंडिचर को डील करता था, वो जनरल एक्सपेंडिचर को सेक्शन 37 डील करने में ये बोला गया कि अब AO जो है उसको लिमिट करने गया है और AO की पावर इंक्रीज करी है। नए एक्ट में सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 की लैंग्वेज एंड सेक्शन 37 की लैंग्वेज में हार्डली कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये कंप्लीट एक रूमर है कि AO जो है वो अब बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है उसको डिटरमाइन करने में उसके पास एनहांस पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेजरली PGBP सेम है, बट हाँ काफी सेक्शंस को मर्ज किया गया है, रिडंडेंट सेक्शंस को हटा दिया गया है जो कि फेज आउट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक आता है एक्रेडिशन ऑफ इनकम। मेजरली जो लोग लिटिगेशन में है वो सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D इसी को डील करते रहते हैं। आजकल जो जनरल डिसअलाउंसेस होती है सेक्शन 37 में, सेक्शन 40A में या 43B में, वो सब डिसअलाउंसेस या जनरल सेक्शंस यूज नहीं होते। मेजरली जो एक्रेडिशन के सेक्शन है, क्योंकि उसमें 115 BBE लगता है और हायर रेट ऑफ टैक्स चार्ज होता है, 78% तक टैक्स चार्ज होता है। असेसिंग ऑफिसर कोई भी कैटेगरी हो वो सेक्शन इन सेक्शंस के अंदर लेके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो चुके हैं। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज आया है। सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 102 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 68 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 102 है, और सेक्शन 68 की जो हेडिंग है वो कहती है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हेडिंग थी, जो सेक्शन की मार्जिनल हेडिंग है वो कैश क्रेडिट है, लेकिन जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, और उसके अंदर ईच एंड एवरी क्रेडिट इंक्लूड होता है। कई लोगों को ऐसी कंफ्यूजन है कि उसके अंदर सिर्फ जो कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में वही वाला क्रेडिट इंक्लूडेड है,
लेकिन स्कोप जो है उसकी लैंग्वेज इस तरीके से गवर्न थी कि ईच एंड एवरी क्रेडिट कुड बी देयर इन सेक्शन 68। तो उसकी जो मार्जिनल हेडिंग है सेक्शन 68 की कैश क्रेडिट, उसको उन्होंने चेंज किया है और उसमें उन्होंने बोला है अनएक्सप्लेन क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट की जगह पे अनएक्सप्लेन क्रेडिट उन्होंने मार्जिनल हेडिंग कर दी है, बाकी स्कोप में कोई चेंज नहीं किया। 69A एंड 69B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 69A होता था अनएक्सप्लेन्ड मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड थिंग्स। 69B रिलेटेड टू अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ये पहले होता था कि अनएक्सप्लेन्ड मूवेबल एसेट्स एंड अनएक्सप्लेन्ड इमूवेबल एसेट्स, एक तरीके से दो डिफरेंट सेक्शंस बना दिए गए। दो डिफरेंट सेक्शंस थे पहले के एक्ट में। अब इन्होंने उन दोनों सेक्शंस को मर्ज कर दिया। जो अनएक्सप्लेन्ड मूवेबल एसेट्स एंड अनएक्सप्लेन्ड इमूवेबल एसेट्स है, उनको सेक्शन 103 में मर्ज करके अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स कर दिया। स्कोप में कोई चेंज नहीं किया, कोशिश ये कही गई है कि इनको मर्जिंग कर दें। रीजन बीइंग कि जो अगर टैक्स दोनों का सेम लग रहा है तो उनको रिडंडेंसी लग रही थी दो डिफरेंट सेक्शंस फॉर्मुलेट करने की। तो एक्रीडिशन ऑफ इनकम जो चैप्टर 6 होता है इनकम टैक्स एक्ट में, पुराने एक्ट में, उनमें यही चेंज हुआ। एक में मार्जिनल हेडिंग चेंज हुई है, दूसरी हुआ है कि जो सेक्शन 69A और 69B है उनको मर्ज किया एक सिंगल सेक्शन में। चैप्टर 6A 80C कितना डिफिकल्ट सेक्शन हो गया था। आधे से ज्यादा प्रोफेशनल ने कभी 80C खोल के देखने की हिम्मत भी नहीं करी गई, सिर्फ नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू सर्च करके कोशिश करते हैं कि क्या ये सेक्शन 80C में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये डिडक्शन 80C में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई थी। सेक्शन 123 जो नए एक्ट में डेवलप हुआ है, उसमें इन्होंने एक टेबुलर फॉर्मेट में शेड्यूल 15 डेवलप किया और उसके अंदर सारी की सारी डिडक्शंस जो अवेलेबल है वो डाली। मैं अगर आपको दिखाऊं सेक्शन 123 जो सेक्शन 80C है, सेक्शन 123C जो सेक्शन 123 जो 80C के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस है, इसमें है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इसमें इन्होंने क्लास ऑफ पर्सन बस ऊपर डिफाइन कर दिया गया और ये बता दिया गया 1.5 लाख से ऊपर का, बाकी सारी जो चीजें हैं वो शेड्यूल 15 में डाल दी गई है। ये बस इतना सा सेक्शन है। मेजरली सारी की सारी चीजें जो है वो शेड्यूल 15 में इन्होंने डाल दी गई है और शेड्यूल 15 इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, डिफिकल्टी नहीं है शेड्यूल 15 में। आप अगर बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, मैंने सबके पेज नंबर नोट कर लिए ताकि इजीली हम, ये है शेड्यूल 15 सी सेक्शन 123 क्वालिफिकेशंस डिडक्शंस कौन कौन सी है। तो अब जो हमें सेक्शन 80C जो इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था, उस सेक्शंस को इन्होंने स्केड्यूल के अंदर इंपार्ट करने की कोशिश करी, शेड्यूल 15। बाकी सर्टेन और इतने सारे सेक्शन थे जो रिडंडेंट हो गए थे। जो सेविंग एंड रिपील क्लॉज था वो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में है, सेक्शन 536 जो नया एक्ट है वो ऑलरेडी सेविंग एंड रिपील क्लॉज डील करता है कि जो भी पुराने बिफोर 1 अप्रैल 2026 से पहले वो पुराने एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे। और पुराने एक्ट में जो ऐसे प्रोविजंस है जिनको जो फेज आउट हो चुके हैं वो हटा दिए गए हैं, और अगर ऐसे प्रोविजंस हैं जो सनसेट हो चुके हैं लेकिन फेज आउट नहीं हुए हुए हैं, अभी भी उनको नए एक्ट में भी डाला गया है। सेक्शन 80G जो है, सेक्शन 80G में इन्होंने बहुत ही क्लियर बाइफरकेशन दे दिया गया है जो पहले नहीं था कि 50% कौन सी डोनेशन है और 100% कौन सी डोनेशन है। उनमें बाइफरकेशंस ये है सेक्शन 133
corresponding to section 80G. Deduction in respect of donation to certain fund and charitable institution. ये वाले सारे ऐसे सेक्शंस है जिसमें 100% जितना सम पे किया उतना दे दिया है, और इसके नीचे के सारे ऐसे सबसेक्शन 2 में ऐसे वो है बी के अंदर। इसमें ऐसा है कि जो 50% है उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। पहले रिलेटिवली कंफ्यूजन होती थी कि ये 50% है या 100% है। सेक्शन 80TTA एंड 80TTB जनरल पर्सन के लिए जो भी इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलती थी, सीनियर सिटीजन के लिए वो 50,000 होती थी सेविंग बैंक की, उसको उन्होंने मर्ज कर दिया गया सेक्शन 153 में। सेक्शन 153 में मर्ज कर दिया गया है। अभी भी नए एक्ट में ओल्ड रिजिम जो है वो मेंटेन करके रखा है, ओल्ड रिजिम फेज आउट नहीं किया हुआ है। काफी ऐसे सेक्शंस है, बिकॉज ओल्ड रिजिम फेज आउट नहीं किया हुआ है, तो मेजरली जितने भी सेक्शन थे, सेक्शन 80C, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, ये सारे के सारे सेक्शंस नए एक्ट में है। ये कोई भी सेक्शन जो है वो एक्ट से निकले नहीं है। अब जो मेजर चेंजेस आता है वो आता है टीडीएस के प्रोविजंस में। टीडीएस के प्रोविजन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस हो गए थे चैप्टर 17B में। अगर कोई क्लाइंट हमें पूछ लेता था कि सर इसमें टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हालत खराब हो जाती थी ये डिटरमाइन करने में कि एक्ट को खोल के देखने में। टोटल 69 सेक्शन से टीडीएस से रिलेटेड, सोचिए 69 सेक्शन सिर्फ टीडीएस से रिलेटेड ओल्ड एक्ट में, और उनको 13 सेक्शंस में मर्ज कर दिया गया है। सारे टीडीएस के सेक्शन 193 से लेके 197 कैपिटल ए तक के जितने सेक्शन से वो सेक्शंस हो गए हैं सेक्शन 393। मैंने आपको लिखवाया था सेक्शन 393 सेक्शंस हो गए हैं। जो सेक्शन 393 के अंदर 43 सेक्शंस को मर्ज कर दिए गए। और अब 393 को इन्होंने कैसे बनाया? 393 को इन्होंने बनाया, 4 टेबल्स इन्होंने डाली, 4 टेबल डाली, और उस टेबल में बोला कि अगर रेजिडेंट पे कर रहा है तो ये टेबल है, नॉन रेजिडेंट है तो ये टेबल है, एनी अदर पर्सन अगर पे कर रहा है तो ये है टेबल। और एक और 4 टेबल डाली कि अगर ये इनकम है और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत। तो जो टोटल 43 सेक्शन से वो अब एक ही सेक्शन डेवलप किया 393, और उसमें 4 अलग अलग टेबल डेवलप करी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेक्शन 393 को इन्होंने डेवलप किया गया है। अब ये ऐसी टेबल बनाई, एंड पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, अगर किसी ने पेमेंट रेजिडेंट को मेड करी है तो उन्होंने इस तरीके से क्लास बनाए हैं कि नेचर ऑफ इनकम क्या है, पेयर क्या है, और थ्रेशोल्ड लिमिट एंड रेट कितना है, कमीशन के लिए कितना है। कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं किया है। जितने पहले 43 चीजों में टीडीएस डिडक्ट होता था, कोई भी ऐसी टीडीएस ऐड नहीं किया, या कोई भी ऐसा टीडीएस जो पहले डिडक्ट करना था उसको डिलीट नहीं किया। सारे के सारे वो सेम ही रहे हैं। रेंट के लिए कितना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अब हम अपनी जब टीडीएस की रिटर्न भरेंगे तो पहले हम सेक्शन में लिखते थे, उसमें सेक्शन 194A या 194C, 194J, 194H। अब वो कैसे होगा? जो मेरा आइडिया, बिकॉज अभी तक इनकम टैक्स, अच्छा इनकम टैक्स रूल्स जो 1962 है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं इनकॉर्पोरेट किए हैं। इनकम टैक्स एक्ट आ गया, इनकम टैक्स रूल नहीं आए हैं। और इनकम टैक्स रूल्स जब आते हैं उसके बाद जो फॉर्म्स है वो डेवलप होते हैं। जो हमारे फॉर्म होते थे कि 26Q हो गया, 24 हो गया, या 27EQ जो टीसीएस से रिलेटेड है, ये फॉर्म्स नए नए डेवलप होंगे। बट मेरा जो आइडिया कहता है वो ये कहता है कि अब
आगे चल के हमें टेबल डालनी होगी कि टेबल पेमेंट टू रेजिडेंट, एंड उसमें सीरियल नंबर मेंशन करना होगा कि कमीशन एंड ब्रोकरेज का सीरियल नंबर ये है, रेंट का सीरियल नंबर ये है। उस हिसाब से हमें टीडीएस की जो रिटर्न भरनी होगी वो ऐसे भरनी होगी, इवन दो अभी तक फॉर्म्स एंड रूल्स नहीं आए हैं इनकम टैक्स के। जो 194A है वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो सीरियल नंबर 5 है, तो हमें सीरियल नंबर 5 टीडीएस की रिटर्न में भरना पड़ेगा टू डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने टेबल्स फॉर्मुलेट करी है, टोटल 4 टेबल फॉर्मुलेट करी है, एक रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए, दूसरी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए। ये सारी टेबल है जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए, तीसरी एनी पर्सन को पेमेंट करने के लिए। इसके अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, इसके अंदर कभी कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा जो रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने के लिए। अगर अगर हमारा उस स्पेसिफिक पर्सन में आ रहा है तो हमें पहली 2 टेबल को ही यूज करना है। मैंने वैसे इसको पढ़ के देखा, इसमें मेजरली कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, सारी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट इनकम शो हो रही है। टेबल नंबर 4 कहता है कि आपको कब कब टीडीएस नहीं काटना, तो इसमें ये आपको ये बताता है कि ये सोर्स ऑफ प्रोविजंस है और ये कंडीशन है, तो फिर आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन है या ब्रोकरेज है, अगर वो पेबल बाय बीएसएनएल और एमटीएनएल है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है उनको। तो इस तरीके से इन्होंने 4 टेबल में बहुत ही अच्छी तरीके से जो टीडीएस के प्रोविजंस है उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। मेरे को लगता है कि ये जो 2025 का एक्ट है, मेरे को लगता है ये प्रेजेंटेशन वाइज इज वे वे मोर बेटर देन द अर्लियर एक्ट। हमें एज अ प्रोफेशनल हो सकता है डिफिकल्टी आए शुरू में, क्योंकि हम अक्लेमेटाइज थे, हम यूज टू थे ओल्ड एक्ट के लिए। लेकिन जो लोग नए लोग इस प्रोविजन में प्रोफेशन में आना चाहते हैं, एंड ओल्ड लोगों के लिए भी, हमारे जैसे लोगों के लिए भी, अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो प्रोविजंस है ये वे बेटर देन ओल्ड एक्ट है जो प्रेजेंटेशन वाइज है। तो कई लोगों का ऐसा मानना था कि जो नया एक्ट आया है उसमें कोई पॉलिसी चेंज नहीं आया है, गवर्नमेंट ने वही का वही रेगुलेट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको खुद से इंटरेस्ट लेके खोल के देखेंगे देन यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि हाँ, ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन जरूरी थी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी। ऐसे ही टीसीएस के लिए जो 206 कैपिटल सी था, अब उसके लिए एक ही टेबल है 394 में, सेक्शन 394 ऑफ द न्यू एक्ट। और जो मेजर प्रोविजंस थे जैसे 197 लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है वो 395, उसके लिए सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट सेक्शंस बना दिए गए जो पहले भी थे। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न 200 कैपिटल ए में वो 399 कर दिया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस एक्ट में आएंगे वी विल गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द न्यू सेक्शंस। ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। एडवांस टैक्स रिफंड इंटरेस्ट मेजरली सेम है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं इसमें। एक सेक्शन होता था एडवांस टैक्स के लिए, सेक्शन 210। सेक्शन 210 ऑफ द ओल्ड एक्ट ये कहता था कि अगर आपको एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, 2 केसेस में आपको खुद को, एसएससी को खुद को ऑन हिज ओन डिटर्मिनेशन, या फिर अगर आपकी सर्च हुई है और अगर सर्च के टाइम पे फॉर द सर्च ईयर असेसिंग ऑफिसर आपको डायरेक्ट करे कि आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना है, तो वो पहले दोनों चीजें जो थी वो एक ही सेक्शन के अंदर थी, सेक्शन 210 में, और उसको अब इन्होंने बाइफरकेट कर दिया 406 न्यू एक्ट में एंड 407 ऑफ द न्यू एक्ट। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको ओन डिटर्मिनेशन करनी है तो 406 यूज करना है, और अगर असेसिंग ऑफिसर आपको डिटरमाइन करके एडवांस टैक्स देता है तो 407। तो नए एक्ट को 2025 के एक्ट को बड़े ल्यूसिडली इन्होंने डेवलप किया। कैसे कि जहां पे इनको लगा कि 2-3 सेक्शंस को मर्ज करने की जरूरत है उन्होंने एक सेक्शन में डेवलप किया, और जहां पे इनको लगा
कि हाँ ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको सेपरेट सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, उन्होंने सेपरेट सेक्शंस इनकॉर्पोरेट करे। ऑल्दो नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं जगह पे अगर इनको ऐसी जरूरत लगी कि हाँ सेक्शन को हमें डाइवर्ज करने की जरूरत है, उन्होंने सेक्शन डाइवर्ज करे। 234 एबीसी के जो इंटरेस्ट है, 234 एबीसी का जो इंटरेस्ट है, उनकी कैलकुलेशंस बहुत ही बेटर मैनर में अब इन्होंने शो करी है। जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी 234 एबीसी में, सबको पता है कैसे कैलकुलेट होता है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन जो लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स थी वो इन्होंने एज अ टेबुलर मैनर में प्रोवाइड करी है। ये वैसे हमारे लिए नहीं है, ये प्राइमरीली हमारे लिए भी है, असेसिंग ऑफिसर दोनों के लिए है, कि कब आपकी स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए, कब आपकी एंड डेट होनी चाहिए, और कितना आपका टैक्स पेबल होना चाहिए, किस किस सर्कमस्टांसेस में आपको यूज करना है। तो जो 234 ए बी सी की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, उसको उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में डेवलप करा। मेजरली जो चेंजेस आए हैं वो इसी तरीके के आए हैं। मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाने की कोशिश करी कि आपको असेसमेंट में चेंजेस बताऊं कि क्या चेंजेस आए हैं, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मीनिंग देयर बाय जो मेजरली कोई पॉलिसी चेंज तो आया नहीं है, मीनिंग देयर बाय जो आपके ओरिजिनल असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, सर्च के प्रोविजंस है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो मेजर चेंज आया है, जो एक एक जो मेजर चेंज आया है वो आया सेक्शन 247 में। सेक्शन 247 ऑफ द न्यू एक्ट इज इक्विवेलेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 132 जो सर्च के प्रोविजंस है। सर्च के जो प्रोविजंस है सेक्शन 132 में, वो अब सेक्शन 247 में आए हैं। एंड सर्च के प्रोविजंस सेम इन्होंने कोशिश करी है, बट पहले जो पुराने एक्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पुराना एक्ट है, ये पुराना एक्ट है सेक्शन 132 का। इसके अंदर होता था वेयर ये सारी कितनी सारी अथॉरिटीज गिवन होती थी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, ये सारी की सारी अथॉरिटीज गिवन होती थी, और ये बार बार हर हर जगहों पे गिवन होती थी। ये वाले सारे लोग जो है, कॉम्पिटेंट लोग जो है, ये ऑथराइज करते थे इन लोगों को, ये ऑथराइज ऑफिसर को ऑथराइज करते थे, और उसके बाद वो एंटर कर पाते थे किसी बिल्डिंग में या सर्च शुरू कर पाते थे। तो पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती थी, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑथराइज करती थी अथॉरिटीज को। अब अगर हम न्यू एक्ट में आए तो न्यू एक्ट में वर्डिंग डाल दिया सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो इतनी सारी वर्डिंग जगह जगह यूज हो रही थी, उनको इन्होंने सिर्फ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वर्डिंग यूज कर दी, बाकी सारी चीजें सेम है। और उसके बाद इन्होंने ऑथराइज अथॉरिटी, जो यहाँ की ऑथराइज अथॉरिटी है, वो उन्होंने ऑथराइज अथॉरिटी लिखा, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्होंने कहाँ डिफाइन कर दिया, ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इन्होंने सेक्शन 261 जो कि इस वाले चैप्टर से इंटरप्रिटेशन में डील करता है, 261 में इन्होंने बोला कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मींस ये सारी अथॉरिटी जो पहले वाले एक्ट में गिवन थी। तो जो पहले एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन्होंने हर जगह जगह मेंशन किया था, अब इन्होंने वहां पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर ऑथराइज ऑफिसर, और वो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। ये मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या इनका पर्पस था ऐसा करने का, आपको शो कर रहा हूं। एसेट की डेफिनेशन जो पहले जहां पे हर जगह पे लिखा होता था एनी मनी बुलियन ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल थिंग और आर्टिकल हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, उन्होंने वहां पे सिर्फ एसेट लिख दिया, और एसेट को उन्होंने बोल दिया है कि आप इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है सेक्शन 261 जो इस चैप्टर से इंटरप्रिटेशन करता है, आप वहीं पे देख लीजिए। बार बार इन्होंने मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड थिंग्स नहीं लिखा। इस सेक्शन के अंदर एक जो मेजर चेंज आया है वो मैं बस आपको रिफ्लेक्ट कर देता हूं, वो आया है सेक्शन 261 में ही। सेक्शन 261 में ही वो चेंज ये कहता है कि जो कंप्यूटराइज रिसोर्सेज है, सेक्शन 201 में ई में कंप्यूटर सिस्टम की एक इन्होंने डेफिनेशन ऐड करी है।
कंप्यूटर सिस्टम पहले वाले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1961 में, ओल्ड एक्ट में कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम मेंशन नहीं था। अब इन्होंने 2025 एक्ट में कंप्यूटर सिस्टम को इंक्लूड करा। पहले भी ये कंप्यूटर सिस्टम था बट वो वाया सीबीडीटी मैनुअल एंड सर्कुलर्स के थ्रू था। अब इन्होंने वो एक्ट में इनकॉर्पोरेट करा है। इसको एक मेजर पॉलिसी चेंज कह सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में काफी बैकलैश भी आया था। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने ये बोला कि हम आज की डेट में भी कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक कर सकते थे, हमारे पास पावर थी, बस वो एक्ट में गिवन नहीं थी, वो वाया सर्कुलर्स एंड रूल्स के थ्रू करते थे, और अब वो एक्ट में दे दी है। हम सेक्शन 247 में देखेंगे तो सेक्शन 247 के अंदर यहां पे लिखा हुआ है कि वॉज इशू टू प्रोड्यूस स्टोर एनी इंफॉर्मेशन स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर सिस्टम। ये पहले नहीं था एक्ट के अंदर। 1961 का जो एक्ट है उसमें इस तरीके की लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम कहीं नहीं है, वर्डिंग यहाँ पे सेम लैंग्वेज है, टू प्रोड्यूस, कॉस्ट टू प्रोड्यूस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट। ऐसे यहाँ पर भी यही है, एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी, एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये पहले भी था बट वैसे वो वाया सर्कुलर था, अब इन्होंने एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। और प्रैक्टिकल सिनेरियो में अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। पहले कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन नहीं उन्होंने डिफाइन करी थी, तो कंप्यूटर सिस्टम को वो मानते थे कि आईटी 2013 जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2013 एक्ट है, उससे ले लेते थे। अब इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन कर दी है। वो जो डेफिनेशन है जो आईटी एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में, वो मेजरली सेम है। मैंने डेफिनेशन दोनों की चेक करी, मुझे उसमें डिफरेंस नहीं दिखा ज्यादा। बस ये था कि वो पहले कोर्ट वहां से लेती थी, अब वो विद इन द एक्ट ले लेगी। तो मेजरली सारी चीजें सेम है। एक्ट को ल्यूसिड बनाने के लिए इन्होंने डेफिनेशंस हर चैप्टर में डाली है। कंप्यूटर सिस्टम इन्होंने सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस में ऐड करे हैं, जो कि पहले वायर रेगुलेशंस के थ्रू थे। और जैसे जिन लोगों को थोड़ा अगर असेसमेंट के आइडिया है, सेक्शन 153 ए से लेके सेक्शन 153 डी ओल्ड एक्ट में जो था, जो 2021 तक ही एप्लीकेबल था सर्च के लिए, जो आगे चल के चैप्टर 158 सेक्शन 158 बी ए बन गया था, बी में डेवलप हो गए थे, वो वाले सारे प्रोविजन ओमिट कर दिए गए क्योंकि वो सनसेट क्लॉज से भी हट गया, फेज आउट हो गया। सेक्शन 153 सी 153 के अंदर सारी टाइम लिमिट थी, जितनी भी टाइम लिमिट सी 153 में बहुत ही कॉम्प्लेक्स था कि ये ओरिजिनल असेसमेंट तब खत्म होगा जब रिमांड बैक हो गया, तब खत्म होगा, रीअसेसमेंट तब खत्म होगा, सर्च के लिए तब खत्म होगा। जो टाइम लिमिट थी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन थी, वो अब टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया सेक्शन 286 में। तो मेजरली कोई इसमें चेंजेस नहीं गए हैं, सिर्फ टाइम लिमिट जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से दे दिया गया है। और पहले बहुत सारे उसमें प्रोवाइजो एडेड थे कि कोविड के टाइम पे फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 जो है उसके लिए टाइम लिमिट इतना है, वो सारे के सारे प्रोवाइजो हट गए हैं। एक बारी मैंने देखा, अगर आपको सेक्शंस की थोड़ी सी नॉलेज हो गई, आप सेक्शन से एक्लेमेटाइज हो गए हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन प्रोविजंस को कैचअप करने में। इनफैक्ट आपको खुद को लगेगा कि कितना सिंपल हो गया है। तो आपको सेक्शंस जो है, जैसे ये रीअसेसमेंट का सेक्शन है, तो आपको सेक्शंस जो है उनको कैचअप करना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसमें एक छोटा सा ये बनाया है जिसमें बोला है मिसलेनियस जो जो चीजें है, कि जितने भी राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द टैक्स पेयर्स है या ड्यूटीज ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो सारी की सारी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। रिफंड का सीमलेस अलाउ होगा, रिफंड में कोई किसी का रिफंड अटकेगा नहीं, किसी का रिफंड जो है डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता अब न्यू एक्ट में जो है प्रोसीजर्स हमारे चेंज हो गए हैं। ये सीबीडीटी ने बोला है कि जितने भी रिफंड है वो सीमलेसली ट्रांजिशन में प्रोवाइड किए जाएंगे। इनकम टैक्स रूल्स जो है वो फॉर्मुलेट होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉर्मुलेट करेगी।
इनकम टैक्स रूल्स में ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि अभी जो भी डेडलाइंस है, जो भी ड्यू डेट है, चाहे वो टीडीएस की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, वो सारी की सारी सेम है, चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग की हो। कोई ड्यू डेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करी गई है, और जो प्रोविजंस थे अपडेटेड रिटर्न के, बिलेटेड रिटर्न के, रिवाइज रिटर्न के, वो सारे सेम रखे हैं। बीच में इसमें बहुत ही मेजर चेंज आया था जिसमें बोला था कि अगर बिलेटेड रिटर्न होगी तो रिफंड एलिजिबल नहीं होगा। वो प्रोविजंस डन अवे कर दिया है और ओल्ड एक्ट के प्रोविजंस ही इनकॉर्पोरेट करे हैं। तो अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है तो भी आपको यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिफंड। अपडेटेड रिटर्न में रिफंड एंटाइटलमेंट नहीं थी पहले भी, अभी भी नहीं है। तो प्राइमरी मेरा जो इसमें पर्पस है कि आपको एक बेसिक मैं ओवरव्यू दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 कैसे आया है, और आपको एलियन ना लगे 2025 का एक्ट। आपको वो एक्ट ऐसा लगे कि ठीक है, हमें एक बार अगर सेक्शंस में थोड़ी ग्रिप हो गई है तो वी कैन इजीली सी इट, और अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा मेरे इस सेशन से। और आप अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 चाहे अभी नेट से पढ़िए, चाहे आप एक्ट डाउनलोड करके उसको देखिए, और अगर किसी की प्रैक्टिस स्पेसिफिक है जो वो स्पेसिफिक प्रोविजंस यूज करते हैं, उन प्रोविजंस को तो प्लीज कंपेयर कीजिए, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। मेजरली कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा, ओल्ड सेक्शन जो था, जो हम ये सोचते थे कि ये ऐसे कह रहा है, जबकि न्यू एक्ट में ये कह रहा था, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटीज हम समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस आप चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, तो उनको प्लीज आप कंपैरिजन कीजिए और उनको पढ़िए। दैट इज इट। मेरा इतना ही, यही सेशन था। आपके किसी के कोई भी डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क। Thank you, Shikhar ji. Dear professional colleagues, if any query, you can ask our speaker. ठीक है मनीष जी, क्वेरीज जो है वो लोग राज चावला सर को भी सेंड कर सकते हैं। मैं मेरे को सर, एक पीपीटी। क्वेरी आ रही है, ये मैकेल विगेस उन्होंने लिखा है कि विल वी गेट ए कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ जी, हाँ जी, मैं सर के साथ शेयर करूंगा, राज चावला जी के साथ शेयर करूंगा। और मैं भी यही बोलने वाला था कि मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा सर के साथ, और वो सबको प्रेजेंटेशन दे देंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद ने डेवलप करी है। मैंने किसी एआई का यूज नहीं करा। मैंने थोड़ा खुद इसको रीड कर करके कोशिश करी, क्योंकि एआई के थ्रू जब प्रेजेंटेशन आई थी उसमें काफी डिफेक्ट्स मेरे को फाइंड आउट करे। तो मैं प्रेजेंटेशन डेफिनेटली सर को शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक। Thank you, Raj Chavla sir, for organizing a wonderful session. And also thanks to speaker C.A. Shikhar Garg ji for sharing and knowledge. And thanks to all participants for attending. We hope you found this session meaningful. Have a great day. Thank you, sir. Raj Thank Chavla you. sir. Thank you, Manish ji. Thank you, Shikhar ji. Thank you Thank you, everyone sir. for joining. And we will send the PPT and this video recording of this session very soon. So thank you to all. थैंक यू। तो ये